ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਉਂਝ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 6 ਲੱਛਣ ਮੂਲ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਗੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੋ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਗੁਣ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2 ਮੂਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗੁਣ ਤੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ, ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। 6 ਲੱਛਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੇ। 1 ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੇ। 2 ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਤੇ। 3 ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਿਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੇ। 4 5ਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸੰਮਿਤ੍ਰ ਸਤਰੇ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੇ। 6ਵਾਂ ਪਰ ਨਿੰਦਾਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣ ਕੇ। ਖਟ ਲਖਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਧਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਤੇ ਜਪਨਰ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਪਦੰ, ਜੈਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸੁ ਫਟੰਗ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬਗਤੰ। ਭਈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जो मंजिल ते चलते सन, घर की तरफ चलते सन, पहुंच गए, पर जिहड़े जिहड़े रोज रस्ते ही बदलते रहे वास्ते रस्ते च ही मर खप गए, पहुंचे नहीं। पहुंचण वास्ते कोई एक रस्ता चुनना पैंदा है। एक रस्ते तो मुराद कोई एक मंत्र नूं चुनना पैंदा है ते जपना पैंदा है। ये मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के तौर तरीकों के नाल जो नाम जपना चाहता सी, उस वक्त मर्यादा सी चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखां पिलाया। चरणामृत पिला देना, दीक्षित कर देना और कह देना वाहिगुरु जप। फिर सिखी का दायरा बहुत वसी होने लग पिया, वधन लग पिया। गुरु अमरदास जी महाराज ने यह आ गया, ये खुल 22 मसंदा नूं भी दे दिते। 22 मसंदा दे चों 3 बीबियां सन, 19 पुरुष सन। ये नाम जपांदे रहे चरणामृत दे के। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक पहुंचदियां, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक पहुंचदियां ये मसंद भ्रष्ट हो गए सन। पूजा इतनी बढ़ गई, ताकत इतनी बढ़ गई और धन संपदा इतनी बढ़ गई, इन्हां दे अंदर ख्याल आ गया आपां खुद ही गुरु बणीए, गुरु वास्ते काम करने की की लोड़ है। कहते ने हैवी ग़िज़ा, भारी भोजन कोई खा लवे ते मैदा कमज़ोर होवे फिर पचदा नहीं। जिमें कईयां नूं भोजन नहीं पचदा, कईयां नूं धन नहीं पचदा, कईयां नूं प्रभता नहीं पचदी, कईयां नूं ताकत नहीं पचदी। उन्हां मसंदा नूं ना पची, वो हजम ना कर सके। सीमा तो वध उन्हां दी पूजा हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, ताकत बढ़ गई, वो हजम ना कर सके। इस मसंद प्रथा नूं फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता और 5 प्यारियां दे हवाले किया ये दीक्षित करना। ये चरनामत पिला के नहीं, बाणी का पाठ होवेगा, खंडे बाठे का अमृत ते बाणी नूं जो दृष्टि दे राही पानी दे प्रवेश करा सके। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, जिहदे हिरदे च बाणी वसी होवे, नाम वसिया होवे, उहदे पैर जिथे टिकणगे धूड़ पवित्र होवेगी, अक्सीर बनेगी,
बड़ी महिमा गाई है गुरबाणी ने, किसी वक्त थोड़े सामने रखांगा। उसकी दृष्टि अमृतमई आती है, और खास करके अगर पानी दे टिक जाए उसकी दृष्टि थोड़े जिहा समय लई, तो पानी अपना सुभाव बदल लेंदा है, वो अमृत हो जाता है। अंदर जप चल रहा है बाणी का, तो बाणी जो अमृतमई दृष्टि के राही अमृत बाहर टपक रहा है। इस वास्ते पंज प्यारियां नूं आ गया बाणी पढ़न लग्या दृष्टि पानी च रखनी पैंदी उस बाठे दे जल विच, ताकि बाणी का सारा प्रताप दृष्टि के राही पानी दे प्रवेश कराया जा सके। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जिहदा हिरदा अमृतमई हो जाता है, उसकी दृष्टि अमृतमई हो जाती है, ਉਹਦੇ बोल अमृतमई हो जाते हैं, ਉਹਦਾ हर कर्म अमृतमई हो जाता है। ये मैं अर्ज करदे हां। साफ किया है भगत नामदेव ने। नामदेव कहते ने मेरे नसां दे विच खून गर्दिश नहीं कर रहा। तो की गर्दिश कर रहा? हर एक दियां नसां च खून आउंदा है, कहते ने नहीं अमृत गर्दिश कर रहा। वो किस तरह? बड़ा कीमती शब्द है भगत नामदेव का। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाव, 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढ़ाओ, पाछे बहुर न आवन पाओ, अमृत बाणी घटते उचरों आत्म को समझा। 70 दोए, 70 ते 2 72, शरीर दे च मोटियां नसां 72 ने। इन्हां मोटियां नसां दा हज़ारां सूक्ष्म नसां नाल संबंध है, जुड़ियां हुई ने। नामदेव कहते ने इन्हां 72 नाड़ियां दे खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत कर रहा। मेरा खून पावन हो गया। इनू डॉक्टर मुहम्मद इकबाल मनते हैं। वो कहते ने एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। मरदे ते लोग रोज पैने खून ते जमीन ते डुलदा पिया, पर जिन्हां दा अमृतमई खून किधरे जमीन ते डुल जाता है, बड़ी भारी क्रांति आती है, ते जगह तीर्थ बन जाती है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का खून चांदनी चौक के जिस स्थान ते डुलिया वो ते तीर्थ बन गया। उन्हें क्रांति लियांदी बड़ी भारी। ਉਹਦੇ नाल देश का जनेऊ बच गया, तिलक बच गया। तिलक जंजूरा का प्रवता का, कीनो बड़ो कलू में साका, जिस थां ते डुलिया है। हुण जेड़ा भी उत्थों लंघदा सिर झुका के ही लंघदा है, वो तीर्थ बन गया। वो खून नहीं डुलिया सी, अमृत सी। जिहदी खून दे अमृत दी धार हो जाए, ਉਹਦੀ दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, ਉਹਦੇ बोल अमृतमयी हो जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐसे 5 प्यारे जिन्हां दी जिंदगी अमृतमयी है, जिन्हां दी दृष्टि अमृतमयी है, जिन्हां दे बोल अमृतमयी ने, उस तरह के 5 सिख अमृत छकाया करनगे, दीक्षित करनगे, वाहिगुरु मन की दृढ़ता कराणगे। तो इस तरीके दे मंत्र हजारां ने। गोरख भी मंत्र है, रहीम भी मंत्र है, अला भी मंत्र है, राम भी मंत्र है, माधो है, मधुसूदन है, सतनाम है। गुरु ग्रंथ साहब विच ये हजारां मंत्र ने। किसी एक मंत्र बारे गुरु नानक कह देंदे यही जपो, तो फिर सिख धर्म सांझा धर्म नहीं रहना सी। जैसे इस्लाम सांझा धर्म नहीं है, खाना काबा दे खाने खुदा दे गैर मुसलमान नहीं जा सकता, उत्थे राम दी धुन नहीं अलापी जा सकती, सिर्फ अल्लाह ही आख्या जा सकता।
यही एक घर है। इत्थे अल्लाह भी गूंजदा पिया, राम भी गूंजदा पिया, मधुसूदन भी गूंजदा पिया, माधव भी गूंजदा पिया और गोबिंद भी गूंज रहे हैं। गोबिंद गोबिंद देत जप नर सकल सिद्ध पदन। वो जो रमिया होया राम है, राम रमो रम जानो पाई। श्री राम चंद जय रूप न रेखया, बनवाली चक्रपाण दर्श अनुपया। प्रहलाद राम नाम जपदा से। और ये दशरथ नंदन श्री राम तो पहले होया, सतयुग दे च होया। मनुखा नूं नाम परमात्मा दे दिते गए, ये भी मैं अर्ज करते हैं। नानक दे अर्थ कीते ने विद्वाना ने, खास करके निर्मले विद्वाना ने। ना अनक जिहदे च अनेकता नहीं है, जो एक नाल जुड़िया होया, एक नूं बोलदा है, एक नूं वेखदा है, एक नूं जपदा है, एक नूं सुणदा है, एक दी सुणांदा है, उहनूं कहंदे ने नानक। ये नाम धार्मिक है। हुण कईयां दे नाम ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मैं देखा नानक सिंह ने, बहुत सारे काबली ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाम नानक सिंह ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, मनुखां नूं नाम परमात्मा दे दिते गए ताकि मनुख अपने नाम तो भी परमात्मा की प्रेरणा लैंदा रहे। सब नाम धार्मिक ने। महाराज कहते पहला लक्षण यह है, उहदी रसना ते परमात्मा का नाम वसिया होवेगा। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। उस मंत्र विच उसका पूरा ध्यान होवेगा। पहचान की होगी, जब भी वो प्रभु का नाम जपेगा वो रस नाल भर जाता है, आनंद नाल भर जाता है। रस उसके रोम रोम विचों फिर टपकता है। ये पहला लक्षण धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने किस दा? पूर्ण पुरख दा, मुकम्मल इंसान। बाकी ते मनुख जमदा अधूरा है, जीवदा अधूरा है, मरदा भी अधूरा है। ये गल वखरी है, उपर मोहर ला देने फलाना पूरा हो गया। ये पहला लक्षण है। मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। दूसरा लक्षण ज्ञानं सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण। ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक ज्ञान होता है कि दुख सुख एक समान, ये बराबर ने, सम ने, बराबर ने। जैसे दो दीवारां बराबर होवन ते छत पाई जाती है, सुख दे नाल ही दुख होंदा है, दुख दे नाल ही सुख होंदा है। कोई मनुख किन्ना क दुखी है, किस तरह अंदाजा ला लो। अंदाजा लाने का एक ढंग है। कितना क सुखी है, जितना देखना सुखी है उतना ही दुखी होगा। ये दोवें बराबर चलते हैं। नफा बहुत बड़ा है तो नुकसान भी बहुत बड़ा है। इज्जत बहुत वड्डी है तो कई दफा बेइज्जती भी बहुत वड्डी होगी। सुख बहुत महान ने तो दुख भी बहुत महान होते हैं। यह भी मैं अर्ज करा, ईश्वर का नहीं हमें। हाँ कदी कदी ऐसा होता है जिवें जमीन ते असीं देखते हैं, दिन वड्डे हो जाते हैं, रातां छोटियां हो जाती। कई दफा रातां वड्डियां हो जांदियां ने, दिन छोटे हो जाते हैं। फिर ऐसा भी समा आंदा है दिन ते रात बराबर हो जाते हैं। कई दफा जिंदगी दे विच दुख वध जाते हैं, सुख थोड़े रह जाते हैं। कई दफा सुख वध जाते हैं, दुख थोड़े रह जाते हैं। उस जिंदगी नूं जे नापीए ते तोलीए, सुख दुख दोवें बराबर ही होंदे ने, सम होंदे ने। यह भी महज करते हैं। जिवें साल भर का नाप तोल करिए तो दिन रात बराबर होंदे ने। रात लंबी हो गई, दिन छोटे हो गए, फिर दिन वड्डे हो गए, रातां छोटियां हो गईयां। फिर ऐसा समा आया दिन ते रात बराबर हो गए, साल भर की तुलना करिए तो बराबर ही है। हमेशा जीवन के सुख दुख बराबर ही होते हैं। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने। संस्कृत का शब्द है सम, इंग्लिश का भी सम है, बराबर।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਆ ਜਾਏ तो आपे तो बाहर नहीं आंदा, तो जे दुख आ जाए तो ढेरी ढा के नहीं बैठता।